بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمود غرضی 78 کے چینل سے مخاطب ہوں۔ یہ ایک گلا بنانے لگے ہیں ہم، جس کے لیے فرنٹ بچھایا ہے، ہاف کیا ہوا ہے اس کو، یعنی فولڈ کیا ہوا ہے۔ تو اس کے اوپر اب پہلے سب سے گلے کا نشان لگائیں گے۔ گلا اوپر سے 6.5 انچ کھلا رکھنا ہے، تو وہاں سے 3.25 انچ پہ، اور نیچے 6.25 ڈاؤن رکھنا تھا، وہ کراس 6.25 پہ نشان لگا دینا۔ یہ اس طرح سے یہ سیدھا کیا نشانوں کو، اور اب فرینچ کرل سے لگائیں گے یہاں پر نشان۔ لیکن اس کو بھی ہم نے کاٹنا نہیں ہے، وہ گلا علیحدہ سے چیپی پہ کاٹا جائے گا جو یہاں بنانا ہے۔ یہ اندازہ کرنا ہے کہ نیچے جو پٹی لگانی ہے فرنٹ پہ، اس کا سائز چیک کرنا ہے کتنا رکھنا ہے۔ یہ اوپر سے 17 انچ ہم لے رہے ہیں، اور یہ پٹی تیار کی ہوئی ہے، اس کی چوڑائی رکھی ہے 1/2 انچ سے 1 پوائنٹ زیادہ، 1/2 انچ سے 1 پوائنٹ زیادہ، اور لمبائی میں یہ تقریباً 32-33 انچ ہے۔ چیپی پر کپڑا سادہ شلوار کا، ٹراؤزر کا جما کر اس کو دونوں طرف سے پریس کر لیا، فولڈ کر لیا کپڑے کو۔ اب یہ سینٹر میں جوائنٹ لیس رکھنی ہے گلے کے بالکل سینٹر میں، جو سلوٹ ہوتی ہے تہ کی، سینٹر والی تہ جو ہے وہاں پر رکھنی اس کو، اور فیبرک گلو سے اس کو چپکا لینا ہے۔ اوپر وہ گلے والا حصہ چھوڑ دیا ہے، جتنے حصے تک گلا بننا ہے، اوپر گول گلا بننا ہے، تو نیچے 17 انچ تک اس پٹی کو لگانا ہے، کندھے سے لے کر نیچے تک 17 انچ یہ سائز رکھا ہے اس پٹی کا۔ اس پٹی کے دونوں طرف وہ پٹی جو فیبرک کی بنائی ہے وہ لگانی ہے۔ اس کو پہلے اچھی طرح تھوڑا پریس سے پیسٹ کر لینا ہے، یہ اپنی جگہ سے اب ہلے گی نہیں۔ تو ویڈیو بڑی تفصیل سے آپ کو ایک ایک پوائنٹ کی سمجھ آئے گی، اگر غور سے دیکھیں گے تو مفید ہوگی آپ کے لیے، اور آپ کو بنانے میں آسانی ہوگی اگر آپ یہ گلا بنانا چاہیں تو۔ یہ گلا ماشاءاللہ خوبصورت ہے، انشاءاللہ آپ جب دیکھ لیں گے مکمل تو بنائیں گے ضرور۔ یہ جو پٹی فیبرک کی بنائی ہوئی ہے، اس کے ایک کنارے پہ شٹر لیس لگا رہے ہوں، اسی سے فیبرک گلو سے اس کو لگا دینا ہے۔ سلائیاں بعد میں اوپر قمیض پہ رکھ کے لگائیں گے، قمیض کے فرنٹ پہ۔ پہلے یہ فیبرک گلو سے اس کو پوری پٹی کو ایک سائڈ پر شٹر لیس لگا لینی ہے۔ یہ مکمل کرنے کے بعد پھر اس کو سینٹر سے تہ لگائیں گے، اور وہ جو ہم نے لگایا ہے سینٹر لیس جو لگائی ہے فرنٹ کے سینٹر میں، وہاں پر اس کو لگانا ہے۔ تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اس سے پہلے بھی گلے کی کئی ایک ویڈیوز ہیں، تو مختلف گلے جب ایک کوئی دوسرا تھوڑا فرق والا آتا ہے تو اس کی بھی ویڈیو بنا دیتے ہیں۔ یہ نیا کام جو سیکھنے والوں کے لیے، یہ ان کی آسانی کے لیے، یہ فیبرک گلو بھی اسی لیے استعمال کر رہے ہیں تاکہ ان کو یہ سلائی اگر ڈائریکٹ سلائی کریں گے تو نیچے سے وہ کھسکے گی۔ یہ جو لیس ہوتی ہے اس کے بالکل کنارے پہ کرنی ہوتی ہے پٹی کے سلائی، تو اس لیے اس کو پہلے گلو سے پکڑ لیتے ہیں تو آسانی ہو جاتی ہے بنانے میں۔ آپ جب دیکھیں گلا تو اس پہ کمنٹ ضرور کیا کریں، اگر آپ کو کچھ اس میں نظر آئے کہ یہ فالٹ ہے یا کوئی بات ہے تو وہ بھی بتائیں، اور اگر آپ کو اچھا لگے تو کمنٹ ضرور کریں۔ وہ کمنٹ ہمارے لیے فیڈ بیک ہوتا ہے کہ ہم اس، اور پھر اگر آپ کو اس سے ہٹ کر کچھ دوسرے گلے کی کوئی فرمائش ہو وہ بھی ضرور کریں، انشاءاللہ ہم وہ پوری کریں گے۔ اور جہاں سے آپ کمنٹس کریں تو اپنی جگہ کا نام ضرور لکھیے گا تاکہ پتہ چلے کہ ہمیں دیکھنے والے کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک سائڈ سے ایسے ٹرن کرنا ہے، دوسری سائڈ سے بھی اسی طرح سے کر کے تو ان کو
चिपका देना है इसके ऊपर, बाद में उसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लेनी है। और अब इस तरह से दूसरी साइड पर भी पट्टी को सीधा ऊपर कर लेंगे। यहाँ नीचे दोनों तरफ से एक क्रॉस शक्ल में प्रेस करना है ऐसे, फिर नीचे वाले हिस्से को ऊपर पलट देना है यूँ, और दूसरी साइड से भी इसको अंदर दे देना है पट्टी को ये कोने में, और वापस उसको ऊपर जब लेके आना है तो जो शटल लैस है वो तीनों तरफ यानी दोनों साइड पे भी नीचे भी घूमी हुई महसूस होगी। तो इस तरह से ये यहाँ से ग्लू लगा के इसको भी पक्का कर लेते हैं। ये बिल्कुल किनारे पे लगानी है लेस के, और पट्टी जो लगा रही है उसके ऊपर बिल्कुल किनारे पे रहे, सिर्फ वो जो डोरी होती है लेस की वही छुपेगी सिर्फ। यूँ यहाँ से ये पक्का कर लिया। अब नीचे वाला जो है उसको ऊपर टर्न करना है, ये देख ले ये इसको ऐसे। तो इस तरह से वो जो लेस है शटर लेस जो साइडों से वो अब नीचे भी नज़र आ रही है। एक ही पट्टी थी उसको टोटल लेस लगी हुई थी, वो नीचे से ज़ाहिर हो गई। अब इसको सिलाई लगाएंगे। ये किनारे की पहले सिलाई लगानी है, तीनों तरफ घूम जानी है, नीचे साइड से ऊपर, फिर सेंटर में दोनों लेसें दोनों सिलाइयाँ लगा देनी है। ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ कि मतलब इसी तरह से आप आराम से सिलाई करेंगे तो बिल्कुल सिलाई नीट और अच्छी होगी, और कस्टमर भी इससे खुश होता है, और फिर मज़ीद काम में बेहतरी आती है। अगर काम सुथरा किया हो तो कस्टमर कहीं जाता नहीं है। दो ही चीज़ें होती हैं, एक काम अच्छा करना और दूसरा वादे की पाबंदी करना। वादे पर ग्राहक को मिल जाए तो ग्राहक आपका पक्का है, और काम भी देखता है कस्टमर लाजमी, काम उसको पसंद आएगा तो बनवाएगा। तो इस तरह से देखें कितनी नफासत से ये गला बन रहा है। इसी तरह से आप भी ट्राई करें। इसके ऊपर राउंड नेक बनना है, वो भी बाद में इसके आगे इसी वीडियो में दिखाते हैं, वो भी देखना है। तो उसका साइज़ और उसके चेपी लगाने का तरीका और उसको टर्न करने का सारा उसमें दर्ज है। अब अंदर वाली दो सिलाइयाँ लगा देंगे जो सेंटर लेस के और पट्टी को जोड़ती हैं। अब ये सिलाइयाँ लगा के उल्टी साइड भी आपको दिखाऊंगा कितनी नफासत है। ये ध्यान रहे कि नीचे वाला कपड़ा ज़रा भी झोल ना आए, उसमें खींचा ना जाए, किसी तरफ से बराबर एक जैसा होना चाहिए। जैसे फ्रंट से नज़र आता है वैसे ही बैक पे एकदम साफ़ कपड़ा रहना चाहिए। बाज़ औक़ात सिलाई करते हुए नीचे वाले को ध्यान ना करें तो वो खींचा जाता है ऊपर, तो उससे फिर वो कपड़े का साइज़ भी सही नहीं रहता, सफाई भी अच्छी नहीं रहती, वो फ्रंट ऊपर उठता है फिर उससे। तो ये क्रॉस सिलाई इधर करके फिर इसी में वापस जाना है। ये जो नीचे क्रॉस बने पट्टी के, अब इधर वापस आके शटर लेस के ऊपर से सेंटर लेस से अब ये कोने में भी सिलाई लगा के वापस ले जानी है। ये लगा के इसी तरह से वापस जाके फिर वो सेंटर वाली ऊपर सिलाई ले जानी है, सेंटर लेस की दूसरी तरफ वाली। अब इस सिलाई को ऊपर तक ले जाएं। तो ये पट्टी का काम पूरा हो गया तकरीबन। अब ये जो सेंटर लेस लगी हुई है इसके दरमियान में हम गोल बटन लगाएंगे पीले कलर के। वो बस वो डेकोरेशन ही होती है, क्योंकि वो कौन से खुलने मिलने होते हैं, ऊपर ही वो लगने हैं। तो अब ये गला फ्रंट का हो गया। अब इसके लिए चेपी काट रहे हैं, जो गोल गला बना है उसके लिए साइज़ वही रहेगा 6.5 जो था, ऊपर से 6.5 खुला, 3.25 से पे निशान लगाया, और नीचे 6.5 था तो क्रॉस निशान लेते हैं हम, जो गहराई है उसका क्रॉस निशान लेते हैं। अब सीधा जो है ना उसके हिसाब से सीधा करके इसको उसी फ्रेंच कर्व से ये गुलाई में दे देंगे।
तो 1.25 इंच से थोड़ा कम चौड़ाई रखते हैं इसकी पट्टी जो गले की होती है इसकी। तो वही निशान लगा रहे हैं, अगर निशान लगा के उनको आपस में मिला के फिर इसकी कटाई हो जाएगी। गला काट के फिर सादा कपड़े पे चिपका लेंगे, जो बचा हुआ कपड़ा होता है कमीज़ का उस पर। इस आपस में ऐसे बिल्कुल सही तरह से निशान सही लगा होगा और निशानों पर सही कटा होगा तो फिर गले की खूबसूरती बनेगी। अंदाज़ा नहीं करते कोई भी चीज़, निशान लगा लें ताकि वो सही नाप हो, एक्यूरेट हो सारा चीज़। अब इसको पिन अप इसलिए करते हैं कि दोनों पल्ले आपस से खिसक ना जाएं। ये चेपी है ना डबल की हुई, तो चेपी काटते हुए इधर उधर ना हो जाए। अब इसको काट लेंगे, बाहर से पहले काट रहे हैं। ये काटने के बाद फिर अंदर से भी काट देना है इसको, और अंदर वाला पीस जो निकलना है उसको ज़ाया नहीं करना। पहले वो चिपकाना है कपड़े पर और फिर बाद में गला के चिपकाना है, ताकि गले का साइज़ एकदम सही रहे। अगर उसके बगैर गले का बिछा के चिपकाएंगे कपड़े पर तो ऊपर से खुल सकता है या तंग हो सकता है। इसलिए ये सेंटर वाला पीस पहले लगा के इसके साथ हिसाब से इसको जो है ये पिन निकाल लें। और ये दोनों पीस चाहिए हमें। ये पहले कपड़े में सेंटर वाला पीस जमा रहे हैं, वो निकाल देना बाद में। पहले वो लगा के उसके बाद ये बाहर सही जो एक्चुअल गला है उसको बिल्कुल उसके बराबर रख के, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, इसके बिल्कुल किनारे के बराबर हो, उधर ऊपर से भी और साइडों में बिल्कुल साथ मिला हुआ, जैसे एक जहाँ से काटा है उसी से बराबर हो जाएगा। अब यूं यूं जैसे जैसे उसको चिपकाते जाना है, सेंटर वाला पीस निकाल देना है, ये इस तरह से। अब ये बिल्कुल सही साइज़ पे चेपी पेस्ट हुई है। अब इसको काट लेते हैं बाहर से दबाव छोड़ के, और उस दबाव को इस चेपी जो गले की चेपी है इसके ऊपर टर्न करना है। सेंटर से सीधा लेके ये साइड भी काट लें दबाव छोड़ के। और अब चलते हैं सिलाई मशीन पे। पहले सबसे चेपी के ऊपर इसको पलटेंगे, फालतू कपड़ा जो बाहर छोड़ा है। कुछ लोग प्रेस से लगा लेते हैं, मैं ज़्यादातर ऐसे सिलाई से ही करता हूँ। आप भी सिलाई से करें, टाइम बच जाएगा। पहले उसके करना पड़ता है, फिर दोबारा भी बाद वक़्त सिलाई लगानी ही पड़ती है। तो ये सिलाई एकदम पहले से ही लगा लें, थोड़ी थोड़ी रोक रोक के लगाते हैं ताकि कपड़ा ऊपर सही तरह से आ जाए, कोना बोना ना निकले बाहर कोई भी। तो अब ये गला तो तैयार हो गया चेपी वाला। अब इसके बिल्कुल सेंटर पे कमीज़ के शर्ट के फ्रंट का जो है उसके बिल्कुल सेंटर में निशान लगा के, नीचे जो डिज़ाइन बनाया है उसका भी बिल्कुल सेंटर होना चाहिए इस चेपी वाले गले के हिसाब से। दोनों साइड से पे मैच कर लेते हैं कि सेंटर में है ये। अब इनको पिन अप कर लेंगे पहले और फिर सिलाई लगाएंगे सेंटर की। ये सेंटर होना बहुत ज़रूरी है, इससे कमीज़ घूमती नहीं है, बिल्कुल सही अपनी गला एक तरफ नहीं जाता। ये सेंटर में अब सिलाई लगा रहे हैं, यहीं से एक साइड पे चली जाएगी सिलाई। इसी तरह से ये गुलाई है तो आहिस्ता आहिस्ता इसको सिलाई करना है। चेपी के ऊपर ना चढ़े और चेपी से हटे ना। चेपी में बोल रहा हूँ पेपर बुकरम को, हमारे इलाके में चेपी ज़्यादातर बोली जाती है, इसीलिए वही ज़ुबान पर चढ़ा हुआ है। ये पेपर बुकरम जो होता है ना, उसका गला उल्टाया जाता है, चिपकाया जाता है उससे। तो अब इसके जो दबाव था उनको कट लगाने हैं, कट सिलाई तक आए, सिलाई ना कटे लेकिन गहरा तक कट होना चाहिए ताकि फिर उल्टाने में आसानी होती है। अब ये जो लगाए थे कट उनको ऊपर टर्न करके गले के चेपी वाले हिस्से पे, तो उसको सिलाई लगा रहे हैं, गला एकदम सही बैठ जाएगा।
اب ویڈیو اچھی لگے تو آپ لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا اینڈ ہونے والا ہے۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو، اللہ تعالیٰ آپ پر ہر طرح سے مہربان رہے۔ تو یہ اب اس کو صرف ترپائی باقی ہے۔ اس طرح سے یہ گول گلے کے ساتھ یہ فرنٹ یوں دیکھ رہے ہیں، یہ کمپلیٹ ہوا۔ اب ترپائی کا کام باقی ہے اور بٹنوں کا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔